Okay, guys. So now see, the topic is related to you are searching lots of things online these days, right? The topic is favorite online resources. Now here, whenever the topic is very simple, it's favorite online resources. Okay. Whenever you have to initiate the topic in this group discussion, you will be like, so good morning, everyone. The topic of today's discussion is you have to name that topic. So similar thing, first line would be the good morning wish, and to all the teammates you're wishing it out. Second is announcing the name of that topic. What is the topic all about? Third line is giving an introduction of that topic. Like it's a free, you can say, favorite online resources. So you can cover it out. Like some of you will come up and give a generic definition of favorite online resources. Like there are a number of resources. You can talk about some kind of blogs, websites. You can talk about some applications, anything from your source run. So you can say that there are different kind of people all over that. There is a vast diversity, and everyone is fond of different type of online resources nowadays, which includes the website journals, the online journals, the websites, the blogs. You can talk about lots of things, right? In a single line now. And then you would say it out that every person's perspective differs according to the need of it. So my favorite resources, you can name that resource. And now I open the house for discussion. So I hope the introduction part is clear. I'm just providing you some of the skeleton. You have to formulate it in your own perspectives. Second, Hindi, English, both are welcome. You can have a blend of it. That's not a problem. Okay. But whenever you are framing a sentence, you have to be very clear that yes, I have written that pointer, or be very attentive. You have to give me very normal examples. Like suppose someone starts discussing about YouTube. YouTube is my favorite online resource, right? And the other person counter it out that YouTube is a very good resource, but it has lots of bugs, the advertisement part and all that. That's wastes lost of the time of a student. Or you could talk about Spotify. You could talk about any of the application which we talk about. The number of resources you can discuss in this run. Remember, whenever you're participating, 3 to 4 times participation is okay. More than that, less than that, it's not required, because 3 to 4, it will give you a generic idea that yes, you have a good participation strategy. GD, the best trick in a GD is it's killing one another. It's like you have to give the best of the pointer. Suppose you find someone who is not able to speak very good. What you do is you take that person and you pull the leg of that person. It's very simple. क्या करो, उस person को समझ लो कि वो अच्छे points नहीं दे पा रहा है, उसके साथ या I disagree with you, I agree with you, आप उसके point को cover करके उसी time को, but that require very smart trick कि आप उसी time पे counter करो, तो आपको बहुत easy हो जाएगा. इसी में जिस तरह से इकट्ठे चलना है, जीडी में आपको क्या है, you have to be you can say reciprocating one another. And last is coming to a conclusion. Conclusions are always neutral ones. Conclusions आपको neutral रखने होते हैं. What is meant in a conclusion is that yes, we had a very interactive session, we had a very fruitful discussion, we had a kind of discussion where different perspectives of students have, or you can say my teammates have been proposed. कुछ इस तरह की लाइन, कभी भी this is a very good discussion, this was a very good discussion, वो लाइन छोड़ दो. ठीक है, तो एक अच्छी सी कंक्लूजन में ये पहले स्टार्ट करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेल मी वन लाइनर that every person he proposed his or her ideas, and we discussed about different kind of online resources, and then we can conclude that yes, there are online resources, there are a number of advantages of online resources also, but yes, everything comes with some of the drawbacks also. Nothing can be perfect, and same comes in the case of online resources. We youth are using the resources, but it should not be like we are becoming the slaves of it. मतलब एक न्यूट्रल सी एंडिंग. आई टुक इट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी. आप किसी और पर्सपेक्टिव में इसको एंड कर सकते हो. मतलब एक न्यूट्रल एंडिंग चाहिए. इंट्रो आई टोल्ड यू, बीच में आपने एग्री, डिसएग्री, एग्जांपल्स, नॉर्मल एग्जांपल्स इस तरह के कोट करने हैं. क्लियर हो गया द एंटायर थिंग्स व्हिच आई टोल्ड अबाउट? Yes, Yes, ma'am. Any Yes, problem? ma'am. yes. Done? Great. Now I'm going to give you 3 minutes to think about the topic, and then we're gonna start it out. Introduction, I think, who can give the introduction to that? I'll try, ma'am. Okay, Manish can give the introduction. Conclusion. I'll give the conclusion, ma'am. Okay, Harshit is with conclusion today. Next time when we are doing tomorrow, I'll give you 5-5 distribution. 5 will be doing the introductions, 5 will be doing the conclusion in the topic, right? So that you have a vice versa situation कि आप intro भी कर रहे हो, conclusion भी कर रहे हो. Practice it at every end. Okay, I think today it's going to be Manish is going to do with the introduction, and the conclusion is done by Harshit. Great. 3 minutes start now. Go for the different dimensions. As I told you, एक dimensions का मैंने discuss भी किया था class में. The ones who have already attended, I think Dheeraj was there in it. Dimensions का इस तरह से आप note कर सकते हो. Youth के लिए, children के लिए आप apps को differentiate कर सकते हो. Polity के लिए, economic के लिए, these were the dimensions. इससे आपको 3-4 pointers बहुत अच्छे से मिल जाएंगे. I'll revise the dimensions in case all of you are new at the end or by tomorrow. Okay?
3 minutes start now. At 3:13, we are going to start. Okay, so you have to do the discussion entirely in 15 minutes. That will be the timer I'm going to set for you so that how many of you can participate in it, that would be seen. Okay, so it's already, the time is up. I think Manish, you can start with the introduction now. Good afternoon, everyone. Am I audible, ma'am? Yes. Yes, yes. Yes, you're audible. Yes. Good everyone. Today we are given a topic, favorite online resources to discuss on as a team. In my opinion, I would like to express some of my views. Like as workload is being increased day by day, and I think Be a bit louder. In between, your voice is not at all loud. Okay, or you can remove your headphones and then start it out. Shall I start now? Yeah, go ahead now. Good afternoon, everyone. Today we are given a topic, favorite online resources to discuss on. In the motion, I want to express some of my views. As we are developing day by day, I think 24 hours will also get shrink to put our efforts on to become a successful, to put our work forward, right? To put our work forward. In that case, I think we should try some other apps like Kuhu FM, which provides audio book. You can use that book while you're commuting to anywhere else. You can go through YouTube app. There are plenty of YouTube channels which provides online information like Nitish Rajput and Dhruv Rathi, Desh Bhakt and all. They provides very much information of very vast topics, right? And you can use if you want to read and you want to get information through reading, तो आप print का भी use कर सकते हैं. Print एक app है जहाँ पे you can read articles, ठीक है? And News Click एक website है, you can read news there, articles there, interviews there, right? So ये सब तो मेरे point of views थे. आप what are your opinion in this motion? मनीष, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे मेरे ओपिनियन से मेरा जो फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज है वो है चैट जीपीटी. तो चैट जीपीटी है वो चिल्ड्रन के लिए, यूथ के लिए या फिर ओल्ड एज पीपल है उनके लिए काफी बेटर है, क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. उसमें अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो वो भी आपको सजेशन दे देता है. किसी सॉल्यूशन की अगर अप्रोच मांगनी हो तो अप्रोच ही बता देता है. एप्लीकेशन या फिर ईमेल लिखना हो तो उसका पूरा फॉर्मेट तैयार करके दे देता है. अगर कोई ईमेल वगैरह लिखनी हो तो उसमें भी हेल्प कर देता है. और अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो, फिटनेस वगैरह से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो चैट जीपीटी बिल्कुल बेटर है इस काम के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि agree with you, बहुत फायदे हैं. अगर हम सो फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्स के लिए जो एक क्राइटेरिया है चैट जीपीटी की बात किया जाए तो उस पर मतलब हम एक पूरे रिलायबल नहीं रह सकते, क्योंकि बेसिकली हाँ वो हमें अपना वर्क तो प्रोवाइड कर दे रहा है, बट उसी के साथ मतलब हमें एक लेजी क्रिएचर भी बना रहा है. सो वी कांट से कि चैट जीपीटी एक मतलब सबको बेनिफिशियल. I agree with Sushil, you. I So agree I with you. think we have Sushil, favorite results given by ChatGPT. very first we should talk about कि कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स फेवरेट किसी का कब होगा. किसी का फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्स तब हो सकता है अगर वो उसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वर्क करे. लाइक वी कैन सी कि डेफिनेटली इंस्टाग्राम, वी ऑल लव इंस्टाग्राम बिकॉज द रिकमेंडेशन दैट इट गिव्स is exactly like we want.
तो कोई भी ऐप तभी फेवरेट होता है जब उस सेम तरह का रिकमेंडेशन रहे. सेम गोज विथ इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट एज ग्रुप्स, इफ वी गो टू किड्स एंड ऑल, सो वी कैन सी कि यूट्यूब किड्स करके एक ऐप बनाए हुए हैं ताकि वो किड्स के रिगार्डिंग ही सारा फंक्शन कर सके. तो वो पेरेंट्स को डेफिनेटली एक फेवरेट चॉइस होता है अपने किड्स के लिए. सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट वेरी अदर डिफरेंट एप्स आल्सो. आई थिंक वी ऑल एग्री कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है फेवरेट ऑनलाइन We should speak one by one. We should be clear in speaking. We are all just speaking haphazardly. We should be clear in expressing our views. एजुकेशन फील्ड में तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो एजुकेशन का जो चैनल है वो हो सकता है आईआईटी के जो एनपीटीईएल के लेक्चर है, नेपटल ओपन सोर्स के Yatindra, yes. जैसे कि काफी अच्छा Yes, Dheeraj, I agree with you. एजुकेशन I think we all have used these NPTEL lectures during our educational days in BTech. Also, currently the relevance of environment protection is growing day by day. So we can also use note-making apps on note-making platforms like NoteShelf, which are also useful for making notes online. It saves paper and also helps us conserve the environment. Also, if we see the political scenario, there are news apps. मुझे लगता है कि जो फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कि इफ वी टेक स्टडी every resource, I think, अगर हम स्टडी आईक्यू को देखें तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक से रिलेटेड एंड बिजनेस से रिलेटेड उस पर बहुत सारी चीजें रहती है. उसके अलावा ही अगर हम एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखें तो देयर आर यूट्यूब एंड देयर इज वूट व्हिच आर वूट किड्स लाइक फॉर द किड्स एंड यंगर जनरेशन. उसके अलावा ही ब्लॉग्स वगैरह बहुत सारे चैनल हैं दैट इज वेरी हेल्पफुल. पर इनके अलावा एक जो आजकल मिक्स्ड रिसोर्सेज है जहाँ पे जैसे यूट्यूब और चैट जीपीटी हुआ जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फील्ड के जो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज रहते हैं उससे रिगार्डिंग. तो दे आर आई थिंक वेरी मच पॉपुलर. I completely agree with you. I agree, but one more thing YouTube से ही मैंने नीट की तैयारी करी थी और YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं कोई भी स्टडी ब्लॉग्स मूवीज हर चीज हर एज ग्रुप को टारगेट करते हैं. लेकिन YouTube Yes, be a favorite online resource. It should be about the perspective of a person. You can't say that okay, Instagram is the best one, so it is the favorite of each and every person. It also depends on the perspective of different individual. Like someone might like Instagram, someone might like Facebook. And one more thing which I want to add with this is like it's not just about the perspective. It is sometimes also about the different countries, the perspective of different people from the different countries. Like in India, we can see the usage of Facebook has definitely declined. But when we go to like countries from Philippines and all, Facebook is the major social media platform there. It's like it is used for social media, even for shopping, even for each and everything. So yeah, favorite online. I think जो हम अभी डिस्कशन में जो फेवरेट रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं regarding the economy, on the economic point of view, economic is the very best app. ऑनलाइन शॉपिंग में काफी अच्छा है. Amazon और फ्लिपकार्ट काफी अच्छा सोर्सेज देते हैं India, but for the worldwide economy. What is I think guys we should speak one by one everything. Yes, Pranay, I think it's very haphazardly manner. We are speaking in very haphazard manner. We should be expressing our views more clearly and not speak like this. I think it's a discussion, not a debate. We are going in the direction of a debate. जैसा मैंने पहले बोला था कि कुछ लोग अपना बात कर रहे हैं, जैसे सब कुछ लोगों ने इकोनॉमी के बारे में बोला. इकोनॉमी के बारे में भी अगर हमें न्यूज चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी यूट्यूब है, उसके लिए भी कुकू एफएम है. उसको आप अपने टाइम के हिसाब से यूज कर सकते हैं. जब आपको अपना एक पर्टिकुलर कोई दूसरा काम कर रहे हैं जिसमें आप खाली सुन के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं. इकोनॉमी के लिए अच्छी अच्छी बुक्स हैं, यू कैन यूज ऑडियो बुक्स, जो कि मैं पहले बोल चुका था. एंड देन चैट जीपीटी जो है, यतेंद्र ने चैट जीपीटी के बारे में बोला. उससे जो है हम ऑनलाइन रिसोर्सेज ले सकते हैं. वो भी एक नया एक अच्छा point. Yes, Manish, I agree with you, but I would like to put in another opinion over here. One point that I would like to add that there are also a downside to this. Reliability. For example, if you see the YouTube thing, there are also YouTube related scams. ज्यादा नहीं है. Like अगर भी चैट जीपीटी के ऊपर एक जब रिलीज हुआ था चैट जीपीटी, तो उसमें भी एक केस हुआ था कि किसी ने उससे पूछा था हाउ टू मेक अ बॉम्ब.
So the ChatGPT denied the question कि ये नहीं मैं नहीं बता सकता, बट इनडायरेक्टली अगर उससे पूछा गया तो उन्होंने उससे पूरा मेथड बता दिया था इनडायरेक्टली. So this kind of Yes, that is, I don't think protection that and that is our reliability. topic, हाँ. but No, I think a lot of us are talking speaking about about reliability, ChatGPT, but like जो actually reliability ChatGPT is not such a reliable tool. I have Yes. used that is ChatGPT what for I'm a number of purposes, and it has not given me a lot of reliable answers number of times. उसके अलावा अभी हमने देखा होगा कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे YouTube वगैरह हमें स्विगी काफी अच्छे ऐप है. फूड डिलीवरी में जोमेटो स्विगी काफी अच्छे है. और सेक्टर की बात करें, ऑनलाइन सेक्टर में फूड डिलीवरी के लिए स्विगी हो गया, जोमेटो का काफी अच्छे ऐप है. अभी जोमेटो ने एक और पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो इंटर स्टेट वो अपनी फूड को वो करता है, डिलीवर करता है. क्या कोलकाता का आइटम दिल्ली में खा सकते हैं. तो ये काफी अच्छे ऑनलाइन ऐप है अगर फूड डिलीवरी की बात करें तो. Yes, but that's not a reliable thing. धीरज Actually, I have tried that option, but it was using excessive amounts of time to deliver that option. So I won't say that that's a really good option to order food online. आसानी से अपने डोर स्टेप तक पहुंचा रहा है. मतलब एक खाने के अलावा मेडिकल फील्ड में भी मतलब एक जो प्रॉक्सी जो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग फेवरेट रिलायबल रिसोर्सेज होते हैं, बट हम ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज है आर दे आर गुड रिसोर्सेज और नॉट. मतलब बहुत सारे प्रॉक्सी रिसोर्सेज भी अभी मार्केट में है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो लोग होते हैं वो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को यूज करते हैं फॉर न्यूज गैदरिंग, जो कि वहां पे न्यूज मिलती है. दे आर नॉट वेरी रिलायबल और बहुत ज्यादा उसमें फेक न्यूज़ भी होती है और प्रोपेगेंडा जो भी वो हमें ध्यान में रखना होगा. So the selection of the resource becomes really important over here. The selection of the resource should also become very which are there. So, we should talk about educational alright resources which are there. So in that we can see that nowadays access of the study material and like the videos that are free actually for in YouTube. We can see that some of the tutor are uploading their videos free. So at that time we can also talk about that. Okay, YouTube is our favorite, or you can talk about any different apps which are there, because we have already studied each and every one. I guess we have studied somewhere or somewhat from online resources. So yeah, there also we can talk about favorite online resources. मैं भी एक अगर हम बात करें तो हमें एक पॉइंट ये देखना चाहिए कि यूथ की जो मेन प्रॉब्लम जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उनको थोड़ी गाइडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो अगर हम कोरा के तरफ देखें या फिर लिंक्डइन या फिर इंडीड की तरफ देखें तो कोरा के अंदर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मुश्किल हो जा रही थी. तो टेक्नोलॉजी के बिना हम मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा. अगर हम ट्विटर या एक्स है वो भी काफी अच्छे रिसोर्सेज है अपनी बात को रखने के लिए, डिजाइन वाले अपने प्रोग्राम कर कंटेंट को सकते हैं. रजिस्टर करने जैसे के कि अगर लिए. किसी को कोई इमेज के अंदर इंटरफेस चेंज करना है तो वो अपन काम कर सकते हैं. इसके अलावा अपने पास अगर इमेज की साइज है उसके अंदर चेंज करना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन टूल अवेलेबल है आजकल बहुत सारे. और इसके अंदर जो ऑनलाइन टूल्स होते हैं ना उसके अंदर अपन बहुत सारे ऐड कर रखे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जो ये अपन को बहुत हेल्प कर सकता है. एक चीज we are living in a world of artificial intelligence and online world. So प्राइवेसी बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न रहता है लोगों का. अभी जैसे कि बहुत पॉपुलर एप्स होते हैं जैसे कि यूट्यूब हुआ. यूट्यूब इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट वी नो राइट नाउ. और यूट्यूब जैसे जो रिलायबल बहुत टाइम से चल रहा था, आजकल वो प्राइम मेंबरशिप देने लगे. तो उनका बेसिकली ये रहता है कि हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे बट इन एक्सचेंज वी आर गोइंग टू टेक योर डाटा. और अगर आपने प्राइम मेंबरशिप लिया तो हम उसे नहीं आपका डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे. ये उनका रहता है, ये उनकी पॉलिसी है. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली हम जो देखने जा रहे हैं, लाइक वी आर टाइपिंग दैट द लेटेस्ट न्यूज अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ. अगर हम एक प्राइम मेंबर और एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में अगर हम सर्च करेंगे तो द न्यूज दैट इज गोइंग टू बी शोन बाय द एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट. तो वो एक प्रोपोगेंडा एंड उसमें क्या बोलते हैं प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग्स वो इन्वॉल्व हो जाती है. उसके अलावा हम मतलब बहुत सारी अनएथिकल चीजें. I think Pranay, every app tries to gather its audience using such tactics of offering subscriptions, etc. And it's nowhere mentioned that. Definitely, we should choose our favorite online resource also. It's not like we should go to any other or platform like that, because we need to have like authenticate information, like the right information only. Like if we like in shorts or some other news app, and if it is not giving us the legit data, then it is not good, right? So for choosing the favorite online resource also, we should have some kind of sense and all.
You have This to in this choose dimension also we should talk. authentic websites, authentic तो apps. जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे प्ले स्टोर होता है, तो ये बहुत सारे जो अलग अलग ऐप होता है उनको अपने एक साथ प्रोवाइड कराता है। तो इसके अंदर ये, लेकिन ये इनके साथ में एक अच्छी खासी इनकी से जो सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो उसके ऊपर कई सारे जो ऐप होते हैं उनके अंदर जो प्राइस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए कई चाहते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन पे ये फीस जो अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसको कम की जाए। तो इसके अंदर इसके लिए कई बार तो जैसे फोर्टनाइट का आया था कि उन्होंने तो अपनी खुद की ही वेबसाइट पे करना चालू कर दिया कि वहां से हटा दिया उन्होंने। तो इसके अंदर आता है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे एक और ऐप को मेंशन करना चाहूंगा जो कि है ट्विटर या एक्स, जो ट्विटर काफी अच्छी ऐप है क्योंकि उसमें देख सकते हैं कि अगर आपको कोई कंप्लेन है तो उस पर ट्वीट करिए तो उसको बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है उस ऐप से। फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं जिनकी जो कि पुलिसिंग का केस है, जिसमें पेटीएम फ्रॉड्स, और ये कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। और हम अक्सर देखते हैं हमारे दोस्तों में, हमारे साथ भी ऑनलाइन ओटीपी वगैरह के लिए कॉल आते हैं, और जिसकी वजह से पेटीएम फ्रॉड्स हमारे पैसे अकाउंट से डायरेक्टली कट जाते हैं। Yes, Anurag, I agree with you that, but it becomes important to use the online resources efficiently and in a safe manner in order to prevent our data scams from occurring with us. ज्यादा खा लेंगे तो वो भी अवेयरनेस के साथ रहना आपने चाहिए। खा लिया तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हर किसी का प्रोज है, कॉन्स है। अगर हम क्या कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से डरने लगेंगे तो हम ऑनलाइन रिसोर्सेज जाके बंद कर देंगे। It's not about being fearful of the scams. It's about actually being careful of not committing such actions. Being aware of these things. I was not also telling about कि fearful रहना चाहिए। It's about being aware and being aware of whatever is happening, being aware of what new scams are happening and ensuring that these things don't happen with us. करने लगे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आज भी वो ओटीपी बता देना, बहुत इजीली ओटीपी बता देते हैं, बहुत इजीली किसी का बैंक से कॉल आता है तो डिटेल बता देते हैं। तो अवेयरनेस I want to give one more dimension to this discussion. Is like yes, Naveen, please give your opinion. किसी हर गांव तक पहुंचा जा सकता है ऑनलाइन के थ्रू। Manish, please let Naveen express his opinion. राइट, हर जगह न्यूज़पेपर नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन हर जगह इंटरनेट पहुंच चुका है। तो ऑनलाइन से डरने की जरूरत थोड़ी ना है कि इसके बारे में इंफॉर्मेटिव होना ज्यादा जरूरी है। Yeah, we are digressing from the topic. Actually, this is not our topic, but yeah, that's why I want to add one more dimension to the discussion, which is like if we are talking about our favorite online resource, games is also one of the thing that we play online, right? So उसमें भी favorite और favoritism एक time पे था जबकि PUBG बहुत favorite हुआ करता था, but it's not like उस time वो ban भी हुआ. So it's not if it's just favorite, so it is legit also. So जो गेम भी खेलते हैं उसमें भी हम लोग सोच के PUBG जैसा कोई दूसरा ऐप भी है, मतलब उस डायमेंशन में भी गेम्स के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूजर्स टिकटॉक के इंडिया में थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया कि टिकटॉक को बैन किया, और उसकी तरह बहुत सारे अभी एप्स और आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐप यूज करना एंटरटेनमेंट के लिए, स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए ये ठीक ही है, लेकिन लोगों को, गवर्नमेंट को अवेयर रहना ही पड़ेगा कि इसका मिसयूज ना हो। My point was not that it is good or bad. करना चाहूंगा जैसे कि यूपीआई है, तो भारत में बहुत बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में फायदा रहता है इससे लोगों का। Now let's go for the conclusion first, because the way you are doing the discussion, that's not actually done in a GP, right? I'm going to tell you all the remarks. You are going to digress to the topic. It was a very beautiful and very interesting topic, and I don't know where you took it. Now, okay. Let's go for the conclusion first, and then I'm going to give you the feedback, all of you. I think the conclusion was to be done by Harshit. Yes, ma'am. Okay, go ahead with the conclusion, Harshit. Yes. So friends, I think we had a very fruitful discussion today on the given topic. Some of us expressed views regarding the utilities of the online resources, and some of us also mentioned the downsides of using many of such online resources. So I think that these online resources are important to use, but also we should be careful while using, because using online resources can have their downsides also. Yes. Now see the number of things which I'm going to tell you. The very important thing in a group discussion is the digression should not be there. What was the topic? Favorite online resources. That was the topic. It was a very simple topic. You have got lots of resources, and that was a discussion. तुम लोग कहाँ पे चले गए? तुमने एक तो ChatGPT को कितनी बार बोला, YouTube को कितनी बार बोला? I told you, many of you are attending for the first time with me. Repetition of a content is too bad. It is like you're repeating someone's content again and again. Second चीज, जब तुम्हें टॉपिक ये बोला गया, यहाँ तो तुमने सारे डिस्कशन कर लियो,
तब तुम जाओ ड्रॉबैक्स पे, किसी चीज के बारे में डिस्कस करो, चैलेंजेस, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर तुम डिस्कस करो। तुमने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज डिस्कस कर लिए थे? आई डोंट थिंक सो, No. यू हैव डिस्कस्ड ऑल द रिसोर्सेज इवन। अब बात हो रही है, आई थिंक वहां पे आई थिंक प्रणय, पता नहीं कौन बात कर रहा था, प्रणय वाज टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी, ठीक है, कि हाउ टू मेक बॉम्ब एंड ऑल दैट वाज अ कन्वर्सेशन दैट वाज गोइंग। धीरज आ रहा है, धीरज डिस्कशन कर रहा है जोमेटो के बारे में, स्विगी के बारे में। दैट शोज अ लैक ऑफ अटेंटिवनेस यू हैव, कि सबको है कि मैं अपना सिर्फ पॉइंट बोल दूं, एंड नॉट इवन कंसर्न कि हम किसी चीज को डिस्कस करके अपना पॉइंट अच्छा बना लें। This is what you are actually doing in a GD. I don't know how you're doing it. Now I'm going to come on one person to one. The way you have spoken, I'm going to provide you feedback completely. अब उसको ध्यान से सुनना, because I'm very much, we have done this topic, but the students were all different. I am talking to you, many of you, for the very first time. We had done this topic, and उसमें हमने वर्ड को लेकर, like MS Excel, MS Word, बच्चों को लेकर क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या एप्स होती हैं, एजुकेशन एप्स क्या है, एंटरटेनमेंट एप्स क्या है, फूड एप्स क्या है, हर एक की डायमेंशन को आप कवर करते हैं। At the end you might have discussed more than 20-30 applications, and that was the purpose. And you could say, the way I think one of you have actually told, perspectives different होते हैं, इस तरह से हर एक की choices different है, but there are lots and tons, blogging है, online journals है, blogs हैं, we get to know a lot of things which we actually do. किसी ने उस पर बात ही नहीं की। एक अब आ जाओ, पहले आ जाओ इंट्रोडक्शन पे। Where is Manish? Manish is there? Okay, Manish, पहले तो whenever you are planning to have an introduction one, today we are given topic, मतलब it is a way when you speak it out. Introduction needs to be very confident one. Good morning everyone. The topic of today's discussion is this. आप अपना ये नहीं हमें ये टॉपिक दिया गया तो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, सम व्यूज डेवलपिंग आ जाता है, उसके बाद नॉट, मतलब आपका क्या था, यू वर नॉट इवन इन अ फॉर्मेट, जो मैंने पहले क्यों मैंने अनाउंस किया था फॉर्मेट। बेसिक पर्पस ऑफ फॉर्मेट वाज कि आप अपनी इंट्रोडक्शन उस सेंस में बना दो कि पहले विश करना है, फिर टॉपिक का नाम अनाउंस करना है, फिर उसकी इंट्रोडक्शन देनी है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज होते क्या हैं एक्चुअल में, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज, एक इंट्रोडक्शन तो दो उसकी मुझे, that nowadays technology has advanced to a tremendous level and we have got so many resources based on, you can say, the children can enjoy the entertainment, the number of applications, educational apps are there, and lots of tons of more are there. My teammates, now I will unfold one by one and I open the house for discussion. वो लाइन से बोली ही नहीं, I don't know why you guys don't even speak that introductory part properly. Similar way, conclusion. हर्षद टॉपिक क्या था conclusion में? Online resources टॉपिक था ना, और हमने ending किस पे किया? It was a very fruitful discussion. We have discussed the utilities and downsides of the resources और हमें carefully use करना चाहिए। अब सोचो कोई person आपको सुन रहा है कि वो टॉपिक के बारे में क्या डिस्कशन एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी, कि we had discussed number of resources based on different dimensions. Be it educational, be it children, for the youth, for the old age, the technology has tried to cover lots of resources. And based on the age groups, every person has its own, you can say, tremendously different online resources. So my teammates have discussed number of those. We might have left a few ones, but yes, every resource has some of the advantages and disadvantages. And we are very happy that technology is advancing at such a progressive level. क्या heading in conclusion होना चाहिए था, और क्या conclusion दे रहे हो? समझ आ रहा है डिफरेंस? बहुत वास्टली डाइग्रेशन करके कर रहे हो ये चीजें, दोनों का ना ही इंट्रोडक्शन अच्छा था ना ही कंक्लूजन। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पर्सन जिसने स्टार्ट किया था, इट वाज यतेंद्र। यतेंद्र वाज दैट? ओके, यस मैम। अच्छा था पॉइंट, चैट जीपीटी, गुड वन। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में हमेशा बोला है कि आपने बोला मैं आपसे सहमत हूँ, देन यू स्टार्टेड, लेकिन मेरा फेवरेट है चैट जीपीटी, सॉल्यूशन करता है, ईमेल करता है, आप ये बोलो ना, द चैट जीपीटी हैज नंबर ऑफ एडवांटेजेस, इट इज हेल्पिंग द यूथ इन नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स, we can, you can say, get lot of information. एक जेनरिक सा, ये मत बोलो सॉल्यूशन देगा, ईमेल लिख देगा, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब उसको पूरा एक्सप्लेन करने से अच्छा उसको बहुत कोड की तरह एक्सप्लेन करो। ठीक है, हेडिंग दो that yes, I am in the favor. I think according to me, my favorite online source is ChatGPT. It has grown, you can say, tremendously. Every person is using it nowadays for some kind of a work, some kind of a profile, and apart from it, आप उसकी एक लाइन, एक सिंपल सी लाइन बोल दो बस, हेडर कम था, पॉइंट ठीक था, पॉइंट वाज गुड। उसके बाद आ गया क्रूशल का। क्रूशल ने बोला कि नवीन ने कुछ बोलना स्टार्ट किया, क्रूशल ने डेजी क्रिएटर, देन क्रूशल यू हैव टू से इट लाइक दैट। एक तो यतेंद्र, आई डू नॉट एग्री विद यू बिकॉज चैट जीपीटी इज नॉट, यू कैन से, वेरी गुड ऑनलाइन रिसोर्स। अब गुड की जगह आपने ये करना था, उसमें क्या आएगा, इट्स नॉट माई फेवरेट इज दिस, आप अपना फिर फेवरेट डाल लो उसमें। ये नहीं है कि उसने क्रिएचर को लेजी बना दिया, बस आपने ये पॉइंट दिया। इससे बेटर था ना, एक चांस मिल रहा तो उसमें अपना भी पुट इन कर दो।
ठीक है, तुम्हें एक आधी बार बार पार्टिसिपेशन करो। अब धीरज का बहुत बार ज्यादा टाइम हो गया था, प्रणय का बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, तुम्हें ये बाउंड्री सेट करनी होगी कि मैंने कितना बोलना और मैंने कितनी बार पॉज कर लेना है, और तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आई थिंक नवीन का आया। नवीन का था कि फेवरेट, नवीन द जनरिक वाज वेरी नाइस, यू स्टार्टेड दैट फेवरेट अकॉर्डिंग टू नीड्स होता है, एल्गोरिथम सेट कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम आ गया, आपने इंस्टाग्राम की बात कर दी, एंड यू कुड स्टार्टेड आउट लाइक टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट व्हिच ऑल ऑफ अस नीड एट अ पैसेज ऑफ टाइम. So that is one of the very useful is Instagram, which is connecting the people also, and we are able to see, you can say, converse with one another on the basis of pictures. ठीक है, पिक्चर्स के बेसिस पे कोई फोटो एडिटर का स्टार्ट कर देता, कोई कितने ही आजकल आई थिंक टूल्स आते हैं जो स्नैपचैट तुम यूज कर लेते हैं, तुम लोग I don't know, there are a number of tools which are related to photos applications also. पिक्टोरिया करना या फिर वीडियोग्राफी करना, तुम उससे भी लिंक अप कर सकते थे। वैसे तुम्हारी हॉबीज पूछी जाए एचआर में तो तुम्हारी फोटोग्राफी हॉबीज होती हैं, जब तुम्हें बोलना पड़ रहा है तब तुमसे बोला नहीं जा रहा, तो ये भी अच्छा टूल, तब तुम्हें 2-3 याद आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स इज उसके बाद धीरज ने स्टार्ट किया एनपीटीएल के बारे में, दैट वाज ओके। धीरज जब स्टार्ट करना है, यू कैन से बेस्ड ऑन एजुकेशन, नाउ आई वुड लाइक टू ऐड न्यू डायमेंशन, लाइक टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट, या तो तुम ऐसे डायमेंशंस डिफरेंट कर दो, जैसे अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन entertainment, I would like to say that yes, education is a key success, and you can say there are number of successes based on education. तो उसके according YouTube is helping it out. इसकी बात कर लो, कुछ इस तरह से बात कर लो, वो बताओ। तुम लोग ना डायमेंशन सीधा ही ना, जैसे बोला था बम्बार्डिंग ईच अदर ऑन द नंबर ऑफ की पॉइंट्स बोलने हैं बस, मैंने कोई सेंस नहीं बन रही तो भी हम पॉइंट बोलते हैं, ये है तुम्हारा हाल। उसके बाद आगे आई थिंक प्रणय का पॉइंट था, नहीं हर्षित का था। हर्षित ने बोला वी हैव अटेंडेड नंबर ऑफ लेक्चर्स इन एनपीटीएल एंड ही स्टार्टेड विद नोट शेल, व्हाट वाज दैट हर्षित? Note shelf application, it's used to make notes online. Yeah, so उसको elaborate करके that apart from it I would like to add note shell is my favorite one, या फिर आप ऐसे कह सकते हो it is friendly। देखो it is not about asking कि आपका फेवरेट क्या है, फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है, that is something which is tremendously growing and people are adopting it. Instagram को क्या बोलोगे, मैं तो नहीं बोलूंगी Instagram मेरा फेवरेट है but I use it, Facebook मेरा फेवरेट I use it, Google मेरा फेवरेट I use it। कुछ चीज होती है हम यूज इतना करते हैं कि वो फेवरेट्स में आ चुके हैं। फेवरेट्स का मतलब क्या होता है, रिपीटेडली लोग उसको यूज कर रहे हैं, ये नहीं मेरा फेवरेट क्या है, इसमें फर्क डिफरेंस समझो। उसके बाद आ गया नवीन ने सिंपल बोलता है यस आई एग्री विद इट। प्रणय का था डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। प्रणय दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट, द वे यू स्टार्टेड इट आउट आपका बहुत अच्छा था। आप में एक ड्रॉबैक ये है, आप बहुत इलैबोरेट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे जो आपने थर्ड पॉइंट बोला ना, आई टेल यू सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, द एवरीवन वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ योर पॉइंट, कि आप कहाँ खत्म करोगे और अगला बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम एक्चुअली हो ये रहा था कि कोई भी कुछ बोल रहा था तो 3-4 लोग बोल रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था कि मैं एंटर करूं कॉन्वर्सेशन में, बट वेन एवर समवन लाइक, जैसे कि नवीन जब बोल रहा था तो उसके अलावा बहुत सारे लोग साथ में बोल रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन क्या बोल रहा है। और मैम फिर इनमें से हमने में से एक लोग ने बोला भी था कि वी आर मेकिंग टू मच नॉइज, वी शुड बी हैव अ civilized discussion। तो that everyone was pausing, हर्षित ने कितनी बार पॉज किया, I know everything, noting it all। yes, I just think whenever you get a note, देखो यहाँ पे तुम लोग लड़ रहे हो, many of you are not even aware like how I do a GD, that is why your perspectives might be different till now with me, right? तो इसमें क्या आ जाता है, जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, you have to address, जैसे कुछ पॉइंट्स है, चैट जीपीटी का तुमने 3 बार पॉइंट रिपीट किया, तुम्हें पर्सन याद है किसने स्टार्ट किया था? यतेंद्र ने स्टार्ट किया। यतेंद्र की बात किसने बोला था, किसने कोट किया? यस आई एग्री विद यतेंद्र। यतेंद्र यू गिव अ चैट जीपीटी पॉइंट, एडिंग टू दैट पॉइंट। मतलब तुम्हें इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करना चाहिए कि तुम्हें किसी के साथ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके चलना है। तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था, ठीक है, और इतने लंबे पॉइंट्स नहीं देने हैं, दैट यू हैव टू क्रैक्स। हेडर यूज करो कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा बेसिक पर्पस क्या है, एंटरटेनमेंट पर्पस था, वूट तुम्हारा पर्पस था, तो सिंपली रिफ्लेक्टिव इट दैट एडिंग टू द एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव व्हिच वाज बीइंग शेयर्ड। पहले किसने एंटरटेनमेंट दिया था, दैट वाज गिवन बाय आई थिंक इंस्टाग्राम वगैरह वाला दिया था, तो वो बोलो कि उस पर्सन ने दिया था, तो एडिंग टू दैट आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये एक दूसरे के व्यूज को आप ऐड भी करोगे। नवीन ने सिंपल बोला एग्री। उसके बाद आई थिंक ए से किसका नाम, आई डोंट नो, अनुराग ने बोला था मूवीज के बारे में, किसके बारे में, फिर नवीन का था पॉइंट डिफरेंट है। नवीन 2 पॉइंट्स जो बोले थे ना, दोनों की इंट्रोडक्शन सेम सी जा रही थी, ठीक है, जनरिक इंट्रोडक्शन पे बार बार कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है, पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पे किसी का एफपी हो सकता है, सम अबाउट क्या डिफरेंट काउंटर करते हैं, मतलब बार बार इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती है नवीन,
ठीक है, उसमें बार बार क्या कर सकते हो, दूसरी बार जब बोलो तो ऐड डिफरेंट डायमेंशन। एक बार तुमने एंटरटेनमेंट की बात कर दी, अगली बार एजुकेशन की बात कर लो, अगली बार किसी और चीज की बात कर लो। ये नहीं कि एक ही चीज पे हमने एक ही सेक्टर को टारगेट करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। आई थॉट दैट Yes, एट द sir. एंड I would be knowing a lot of more from you guys, because you guys can tell me a lot of different kind of applications which are existing. तुम लोग तो फिर से 2-3 पे ही आ जाते हो, वो मत करो। उसके बाद मनीष का था, इट इज अबाउट इकोनॉमी बुक्स, फिर चैट जीपीटी, फिर वही चीज चैट जीपीटी हो गया था ना डिस्कस, है ना। फिर क्यों वापस आ रहे हो इकोनॉमी की बुक्स पे, फिर बुक्स पे आ गए, फिर टाइम अकॉर्डिंग यूसेज, मतलब वो पॉइंट अच्छा ही नहीं था। इवन इफ यू स्पोक दैट थिंग, दैट वाज नॉट अ गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड। तो मैं ये देखना, मैं 3 बार बोलूँ ना तो मेरी 3 बार मेरी वैल्यू हो, मेरा पॉइंट बहुत अच्छा था, चाहे 1-2 बार बोलो। द क्वालिटी मैटर्स मच मोर देन योर क्वांटिटी। ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, क्वालिटी प्रेजेंस करनी जरूरी है, ठीक है। मैंने बोला 3 बार तक, 3 बार बोल देता हूँ, चुप हो जाओ। तुम लोग भी हो कि नहीं मैंने पॉइंट बोल के गलत प्रूफ करना है अपने आप। नेक्स्ट फिर प्रणय का आ गया, अब हाउ टू मेक बॉम्ब। अब उसमें क्या जरूरत पड़ती, फिर चैट जीपीटी की बात होगी। अंडरस्टैंड, कितनी बार तुम रिपीट कर रहे हो एक ही चीज को, Yes, ma'am. तो ये तुम्हारी गलती है। उसके बाद धीरज ने सुना नहीं, धीरज बोलता है कि मेरे को मेरा पॉइंट बोलना है बस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फूड एप्लीकेशंस। वो बॉम्ब की बात कर रहा है, ये जोमेटो स्विगी पे आ गया, वो कह रहा है कि वो प्रोजेक्ट है। मतलब कि तुम ये देखो तुम्हारी कोऑर्डिनेशन चलती है जब तुम डिस्कशन करते हो। फिर धीरज यू कुड से इट आउट लाइक adding to your dimension, or I would like to bring new dimension that is very important related to the food requirement and food resources. फिर उस पर बात Yes, करो, ma'am. ठीक है, वो भी Yes, आपने ma'am. नहीं किया ठीक तरह से। उसके बाद प्रणय का आ गया, आर दे गुड और नॉट, हम वो डिस्कस करते हैं। गुड और नॉट टॉपिक ही नहीं था और सभी लोग कर रहे हैं, यस आई एग्री विद प्रणय। वो प्रणय गलत जा रहा है, उसको जाने दो, तुम लोग क्यों एग्री कर रहे हो? Why you guys are agreeing to him? He is going wrong, let him go wrong. One of there also will be a person जो गलत जा रहा होगा, तुम लोग को साथ नहीं देना है, you have to stop yourself and the person is getting digressed, you can warn Pranay. When the topic is about the favorite online resources, we can discuss much more about it. Still there are many thoughts which are pending. उसको टोको। उसके बाद Yes, नवीन ma'am. एजुकेशनल एप्स के बारे में, ट्यूटर एंड यूट्यूब वगैरह का। यतेंद्र का फिर कोरा के बारे में था। यतेंद्र बीच में अनुराग ने बोलना शुरू किया, धीरज ने आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दोस पॉइंट्स। नमन का आ गया, नमन का एक था ऑनलाइन टूल के बारे में, और इसके बाद नमन वर यू स्पीकिंग कि अपन को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इसमें, और आई हर्ड इट रॉन्ग, मैं बोल रहा था. बोलना था ना। एंड यू यस मैम, थिंक Yes, ma'am. एक्चुअली मैं अलग पॉइंट बनाना चाह रहा था लेकिन बन नहीं पाया था वो पॉइंट मैं। फॉर्मेलिटी एंड कैजुअलिटी इज नॉट अलाउड, ये तुम लोग बोलते हो है ना, ये नहीं बोलोगे कि अपन को हेल्प मिल जाएगी इसमें, ये हो जाएगा। हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं वहां पे। यू गाइज आर नॉट अवेयर, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, तुम लोग जीडीज कब से कर रहे हो, जीटीज कब से कर रहे हो। वहां पे यू आर टू मेंटेन डेकोरम एंड रिस्पेक्ट, यू हैव टू बी वेरी श्योर विच वर्ड यू आर यूजिंग, ठीक है। So because many of the people get benefited or something like that. अपन वर्ड नहीं बोलना, and I was like confused कि मैंने सुना है कि आपने सच में बोला है, ठीक है। मैं वो पॉइंट नहीं बन पा रहा था तो वो गलती से निकल गया था। नहीं, नेवर नेवर कैजुअलिटीज नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। यू Okay. थिंक अबाउट इट, समवन इज, ये एचआर में बोलोगे वहीं पे निकाल दोगे, Yes. तो कैजुअलिटी किसी में भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट योर प्रणय का। प्रणय इतनी बार बोलने के लिए किसने बोला था, पहले मुझे ये बताओ। वो पॉइंट इतना वर्स था, उसमें प्रमोशनल पता नहीं क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसिडर करती है, प्राइवेसी कंसर्न, यूट्यूब, मतलब मत बोलो ना वो पॉइंट, इससे अच्छा तुम्हारी होगी थी इतनी मेरी कन्वर्सेशंस। बीच में देखा करो, स्टार्टिंग में एक बार बोल दिया, बीच में बोल दिया, एंड पे बोल दिया कि मैंने अपने पार्टिसिपेशन अच्छी की, मैंने क्वालिटी पॉइंट्स दिए। ये आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को जो इतना लेंथी पॉइंट, एवरीवन इज लिसनिंग, आई वाज जस्ट first time I was entirely waiting the GD to be ended and provide you the feedback, because this was going to be the worst GD I've ever done, because you guys were not even giving me quality points at the end. बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसमें तो ये है कि मुझे एक सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, जो सबसे कम वर्स्ट होगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगी आज। नेक्स्ट आई थिंक नवीन का था, वी शुड गो फॉर नवीन ने। फिर नवीन तीनों बार जब भी बोला ना, कुछ सोचो, इंट्रोडक्शन सेम जैसी दी है कि नहीं दी है, किसी में पर्सपेक्टिव, वी शुड नॉट चूज द फेवरेट। आई थॉट दैट द टॉपिक, इसमें मैं मेरे को लगा कि टॉपिक कुछ ऐसा है कि फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्स जो है उसको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्स क्या है। इट वाज नॉट, आई थॉट दैट इट इज नॉट लाइक कि फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्स पे ही बात करें, दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग लाइक दैट। मैं इस पे आपको डिफरेंस कराऊंगी, वर्सेस टॉपिक कैसे होते हैं, फ्री डायमेंशन टॉपिक कैसे होते हैं। ये है फ्री एंड टॉपिक। फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज का मतलब ही ये होता है जो ज्यादा पॉपुलैरिटी में जा चुके हैं, जो ज्यादा यू कैन से इन डिमांड होती है चीज।
अब तुम्हें बोलो फेवरेट ब्रांड्स कौन सी है, तुम्हारी ब्रांड चाहे कोई और नॉर्मल लोकल शॉप्स होंगी, या कोई तुम ये लगा लो कि तुम्हारी कोई ब्रांड, यू कैन टॉक अबाउट एनी सिंगल वन, मिडाम होगी, कोई भी चीज होगी, है ना, लिवाइस लगा लो. व्हाई लिवाइस एंड ऑल दैट हैज बिकम द फेवरेट्स? बिकॉज मेनी पीपल आर बाइंग इट आउट, दैट इज व्हाई इट इज अ फेवरेट. इट्स नॉट योर पर्सनल फेवरेट. पर्सनल फेवरेट तो फिर हर एक की डिफरेंट आ जाएगी. ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच इज इन पॉपुलैरिटी. दैट वाज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट. वो गलत था. उसके बाद नमन का था आई थिंक ऐप राइट सब्सक्रिप्शन, वहां पे चले गए. अनुराग ने डिस्कस करना शुरू कर दिया साइबर क्राइम के ऊपर, पेटीएम का वो करना चाहिए. मनीष ने भी ऑनलाइन कोर्सेस, हर्षित का बीइंग स्कैरी, टिकटॉक वगैरह वाला बैन अनुराग ने, किसने? बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन, बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन पे चले गए. सो कमिंग टू ईच वन ऑफ यू, यस मैम. थोड़ा अपनी कैजुअलिटी पे थोड़ा ध्यान रखो. ठीक है, अनुराग डू नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक. अंकित का तो मैं एक वर्ड नहीं सुन सकी, आई थिंक मुझे कोई वर्ड ही नहीं मिली है कि मैं किस पे फीडबैक दूं अंकित को. धीरज, ओवर पार्टिसिपेशन Yes, हो ma'am. गई, अटेंटिवनेस लैकिंग थी आज. Okay, Lot of ma'am. attention was not there. Crucial pointers were very average ones. अच्छे pointers नहीं थे आज के. ठीक है. नवीन, repetition in the content, 3 contents, 3 portions, same way, एक ही तरह के चल रहे थे. मनीष, similarly introduction अच्छा नहीं था आपका, बीच में भी जो points है I told you about that. प्रणय, think about the quality points then quantity, और बहुत लंबा content मत दो. Who's left? Done? All the ones gone. Harshit. Yeah, Yatendra, one thing I would like to tell you, see, you start very nicely. You started very good and gracefully. जिस पे आपने सबने points टिक किया, credit किसको मिलेगा? Because he gave the best of the point. उसने advantages हर चीज discuss कर दी. तुम लोगों ने तो वो कर दी थी. यतेंद्र, उतना point variation में लाना कि different dimensions, headers use करनी शुरू कर दो अपने topics में. ठीक है? Headers are much needed in your topic. Clear? हर्षित, you were very nice in balancing. चुप कराने में बहुत अच्छे थे, लेकिन digression में भी बहुत बुरे थे. ठीक है, तो उसमें कंक्लूजन भी आज का अच्छा नहीं था. इट इज नॉट द वे वी कंक्लूड, इट इज नॉट द वे वी इंट्रोड्यूस द टॉपिक. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, कल हम कुछ टॉपिक करेंगे रिलेटेड टू वर्सेस. हर एक में सोचा करो फ्री एंड टॉपिक, मतलब जिसमें आपको टॉपिक का कोई आपको जेनरिक टॉपिक, जैसे ये आगे फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज. मैंने नहीं बोला व्हाट आर द चैलेंजेस इन फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज, हाउ टू चूज अ फेवरेट ऑनलाइन रिसोर्सेज. मैंने कुछ टॉपिक का आपको हेडिंग नहीं दिया था, मैंने बोल दिया बिल्कुल मैक्सिमम डायमेंशंस चूज करो. आप लोगों ने नहीं की. ठीक है, उस तरह से अपने आप को डिवाइड करो, अच्छे से प्रिपेयर करो. अब किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लो. एनी पर्सन विद एनी डाउट? Like yes ma'am, after 2 points my next 2 points were like we should talk about games and all. I was trying to give different dimension of different online resources. तो उस पे या just topic दे के छोड़ देना या फिर उसके बारे में और भी कुछ, because अगर और बात करेंगे तो वो point ज्यादा लंबा हो जाएगा. One liner if I say about the topic, like adding to your perspective, you can say it up. Yes, the favorite number resources based on the educational sector. Education, the students, you can say the children love the entertainment purposes, and there are a number of applications. Disney Hotstar is there, and you can say talk about the Netflix engine. Netflix की किसी ने बात नहीं की. What is about our ways? बहुत लोग, तुम लोग से कितने लोग Amazon Prime, Netflix और ये चीजें यूज करते हैं? सिर्फ Amazon Prime का नाम आया, वो भी सब्सक्रिप्शन. वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, अपने रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये चीजें. तुम सोचो कि तुमने ये करना है, एडिंग टू डिमेंशन बेस्ड ऑन एजुकेशन, एडिंग टू डिमेंशन बेस्ड ऑन दिस थिंग, इससे डिवाइड करो ना अपने आप को. क्लियर? मैं हमारे डिस्कशन मिक्स्ड हो रहा था, मतलब मतलब एक एक उसको लेके हमको डिस्कस करना चाहिए था, लाइक एंटरटेनमेंट को अलग से, न्यूज को अलग से, इस तरीके से. ये चीज होता है जब आप एक चीज की डिस्कशन कर रहे हो ना, जैसे सपोज करो कि किसी ने एंटरटेनमेंट की डिस्कशन शुरू की. ठीक है, तो जब आप एंटरटेनमेंट की डिस्कशन करोगे, सारे लोग एंटरटेनमेंट का एक एक पॉइंट बोल दो ना, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट डायमेंशन. तुम लोग पता क्या करते हो, व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट इन ऑल द पीपल इज, तुम लोग अपने पॉइंट्स लेकर तैयार बैठे होते हो कि मैंने सिर्फ अपना पॉइंट बोलना, यू आर नॉट इवन अवेयर कॉन्शियस कि बाकी लोग क्या डिस्कस कर. यहाँ पे गलतियां कर. और तुम लोग सभी यही करते हो, मेरे पॉइंट की बारी कब आएगी, चाहे मैं वही तो देख रही हूँ. आप खुद हैरानी वाली बात सुनो, वन इज टॉकिंग अबाउट बम्स, अदर इज टॉकिंग अबाउट फूड. इज दिस इवन रेलेवेंट एंड दैट टू आफ्टर अ सेकंड ऑफ टॉपिक? You understand the difference? खुद सोच रहे हो. ठीक है, attentive हो जाओ. This was not the way a GD is to be done. Improve it guys tremendously. ठीक है? Okay? Any other? मैम यार ये बहुत ज्यादा जैसे कि हॉच पॉच हो जाता है कॉन्वर्सेशन, उसको हैंडल कैसे करना चाहिए? अभी तुम लोग हॉच पॉच कर रहे हो, वहां पे नहीं होगे. तुम्हारे जब क्वालिटी पॉइंट्स होंगे ना, everyone will be pausing. Running person were listening to you when you were speaking. तुम्हारे कोई क्रक्स नहीं निकला, सभी ने अपना पॉइंट शुरू कर दिया.
चैट जीपीटी को सुना ना सबसे पहले, पकड़ा उसको, जिस टाइम पॉइंट पे लग रहा था कि कोई अच्छा बोल रहा है उसको पकड़ के तुम बाद में डिस्कशन भी कर रहे हो, और अगर कोई नहीं डिस्कस कर रहा है उसके बाद 10 पॉइंट्स के बाद बोल रहा है, उसमें तुम्हारी लैक ऑफ अटेंटिवनेस दिख रही है। वहां पे फाइनल्स में नहीं होगा, बिकॉज यू नो दैट यू आर बीइंग वेट फॉर एवरी सिंगल पॉइंट, ठीक है, वहां पे नहीं करोगे तुम। अब बताओ और कोई चीज, एनी अदर प्रॉब्लम टू एनीवन? Yes, ma'am. Can you give a few points on which we should discuss on this topic? few points we should discuss, Like किस डायमेंशन में बात करना चाहिए था मैम? नहीं, एक प्रॉपर सेशन लिया था नवीन, यू वर देयर, जिसमें मैंने हर डायमेंशंस। Yes ma'am, that one I have, all that, yeah, that I have. For this topic, especially this topic की मतलब इस पे कैसा बात होना चाहिए था? आपको एजुकेशन से देखो, मैंने आपको एक एज ग्रुप्स में मैंने डिवाइड करके बताया था, यूथ के लिए क्या होता है, चिल्ड्रन के लिए क्या होता है, और ओल्ड एज के लिए होता है। आपको 3 डिफरेंट सेक्टर्स मिल जाने थे। यूथ किस किस चीजों में टारगेट करता है, एजुकेशन में टारगेट करता है, एंटरटेनमेंट के टारगेट करता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट के टारगेट करता है। आप लोग में जब मिलते हैं ना 2-3 मिनट मिलते हैं, टेबल बना लिया करो। जो मैंने 10 डायमेंशन भी लिखवाए हुए रिलेटेड टू इंडिया के डायमेंशन से, सैटरडे वाली क्लास लगाई थी नवीन? Saturday, no ma'am, Saturday I was not there. Last Saturday, I don't know if you have a recording, I need to check it out. उसमें हमने different perspectives discuss किए थे, इसमें इंडिया आ जाए तो क्या That I have 8 different types of topic, 8 different perspective right here, that I have. क्या was there, रूरल, अर्बन, ये सारी चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, वो हमने लिखवाए थे टॉपिक्स, है ना। उसके बाद मैंने ये बोला था कि जब आपको आ जाए, अगर ये आ जाए, अब यूथ के बारे में मैंने बोल दिया क्या क्या चीजें हैं। नेचर के बारे में, नेचर में डिस्कवरी चैनल्स है, डिस्कवरी में कितनी बातें होती है, आपको अवेयरनेस कैसे होती है, मीडिया स्प्रेडिंग कहाँ से होती है, वो तुम डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। रिसोर्सेज कौन से है तुम्हारे पास, वहां से तुम्हें अवेयरनेस मिल सकती थी। पॉलिटिकल, ये सारे तुम्हें जितने भी इश्यूज है पॉलिटिकल, कहाँ से अवेयरनेस मिलती है, उनके एजेंडास के बारे में वहां पर डिस्कशन करो। इकोनॉमिक की बुक्स निकाल दी मनीष ने, इकोनॉमी का तो आप सिंपल डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू मीडिया, एवरीथिंग, कि मीडिया से हमें अवेयरनेस मिल रही है, आज हमें ग्लोबलाइजेशन से स्प्रेड अप हो रहा है, हम कितना कनेक्टेड फील करते हैं। जो ये सारी एप्लीकेशन से, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑल दीज, ये एक ही कैटेगरी में डाल सकते थे, आपस में एक कन्वर्सेशन वाली। आई गिव यू द फीडबैक, मैं तुम्हें ये सारी चीजें लिख के एक बार नोट करके तुम्हें सेंड कर दूंगी। एक बार ये सारा टॉपिक आज का जीडी का हो लेने दो, क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।